Praise God. स्तुति हो। I once again thank Lord for this wonderful opportunity to interact with you on this hot topic. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे अवसर के लिए जो इस विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए जो अवसर प्रभु ने दिया। We are living in a time when the coming of Jesus is very imminent. Anytime he may come back. हम एक ऐसे समय में रहते हैं जहाँ पर यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, वो किसी भी समय आ सकता है। And Jesus himself has foretold that the end times will be tough times. और यीशु मसीह ने खुद इस बात को बताया कि अंतिम दिनों का जो ये समय है काफी मुश्किल समय होगा। It's really tough, not only in terms of health and economy, but also in terms of ideologies also. ये सिर्फ स्वास्थ्य या अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ही मुश्किल नहीं है, लेकिन जो शिक्षाएं प्रचलित हैं उसके संदर्भ में भी काफी मुश्किल समय है। The tendency these days is to call nobody wrong, to say that everything is right. और आजकल एक ऐसी प्रथा जो है प्रचलित है जहां पर किसी भी बात को गलत नहीं कहा जाता है, ये कहा जाता है कि सब कुछ सही है। Everything is right. That is the politically correct statement. और अगर हम राजनीतिक रूप से देखें तो ये अक्सर माना जाता है कि सब कुछ सही है। A politician will never say that something is wrong. एक राजनीतिक व्यक्ति कभी ये नहीं कहेगा कि कुछ गलत हो रहा है। And everybody is supposed to follow suit, that everything is right. That is what the motto of the 21st century or even 20th century also. और अगर हम 20वीं सदी या 21वीं सदी में भी देखें, यही एक नारा जो है बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है कि सब कुछ सही है, गलत कुछ भी नहीं है। But we as Christians are supposed to call a spade a spade. पर हम मसीही होने के नाते जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही कहने के लिए बुलाया गया है। We have to say the truth in love, agreed, but we have to say the truth strongly. ये बिल्कुल सही बात है कि हमें सच्चाई को प्रेम से बोलना है, लेकिन सच्चाई को सच्चाई के रूप में बोलना भी जरूरी है। So that is the task before us. How can we tell people who are in the wrong that they are wrong? That is a real problem for the modern people. और यही हमारा भी कार्य है कि जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं उनको गलत कहना, ये हमारी जिम्मेदारी है। It is wrong not to call wrong wrong. It is wrong not to call a wrong thing wrong. एक गलत चीज को गलत ना कहना भी गलत है। We have to say the truth in love. हमें प्रेम से सच्चाई को बोलना है। So I pray that the Lord help us in the next 45 or 50 minutes to deal with the hot topic of whether Islam has infiltrated into Christianity and whether we need to be careful about that, etc., etc. और अगले पौने घंटा या 50 मिनट जो है इस विषय पर जो आज हमने लिया है कि क्या इस्लाम ने कलीसिया में प्रवेश किया है और हमें क्या इससे सावधान रहने की जरूरत है, इस विषय पर बात करने के लिए प्रभु हमें मदद करे। As I said earlier, most people think it convenient to say that everything is right. Why should we oppose other people and why should we try to convert, etc. और जैसे मैंने पहले कहा कि अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि क्यों हमें ऐसी बातों के विषय में बात करना है या उसको गलत और इसको सही क्यों कहने की जरूरत है। When I was studying to become a priest in Catholic Church, then I remember it was I who took initiative to conduct a meeting on the Ramadan month to honor Muslim faith. और मुझे याद है जब मैं एक पादरी बनने की जो है शिक्षा ले रहा था, उस समय मैंने ही एक ऐसी सभा आयोजन किया था जहां पर इस्लाम का जो विश्वास है और रमजान का समय जो चल रहा था उस पर उनके विश्वास को आदर करने के लिए एक मीटिंग की आयोजना मैंने की। Then I was of the opinion that Islam is a sister concern of Christianity because we see so many names of the Old Testament quoted in Quran, and Jesus is mentioned with great respect there. Mary is mentioned with great respect there.
मेरा ये मानना था उन दिनों में कि जो इस्लाम धर्म है मसीही धर्म का या ईसाई धर्म का एक साथी है, क्योंकि वहां पर हम पुराने नियम के कई नामों को उस पर पाते हैं और मरियम के विषय में और यीशु मसीह को भी बहुत आदर के साथ कुरान में बताया जाता है। Most of the people, including Christians these days, think that Christianity and Islam are siblings. और अधिकतर लोग आज के समय में भी जो है ये विश्वास करते हैं कि मसीही धर्म और जो इस्लाम धर्म है एक तरीके से भाई बंधु हैं। It is a good thing that during the last 1 or 2 decades, a study of Islam has been much in progress, both in Kerala and all over the world, because of many reasons. और पिछले 1 या 2 दशक या 10 या 20 सालों में इस्लाम के विषय में काफी चर्चाएं और काफी इसके विषय में पढ़ाइयां की गई हैं और इसका ना सिर्फ केरल में बट विश्व के कई अलग-अलग जगहों में। I don't know whether you have heard of the news that one professor, one Joseph Marsh, his hand and feet were cut off simply because of the fact that he made a derogatory statement about a man whose name was Muhammad. आप मुझे नहीं मालूम कि आपने इस न्यूज़ के बारे में सुना है कि नहीं। एक व्यक्ति जिसका नाम जोसेफ मार्श है, उनके हाथ और पांव जो है काट दिए गए थे सिर्फ इस कारण कि उसने मोहम्मद नाम के किसी एक व्यक्ति जो कि कुरान के मोहम्मद नाम से मिलता है उसके विषय में कुछ टिप्पणियां की। Actually, it was not related to the Prophet Muhammad, but he made a funny statement about a man named Muhammad, and he was brutally punished for that. और उस व्यक्ति ने जो जोसेफ मार्श है उसने कुरान के मोहम्मद के विषय में नहीं कहा था, लेकिन किसी एक दूसरे व्यक्ति मोहम्मद के विषय में कुछ मजाकिया रूप में कुछ कथन कहा था, लेकिन उसको बहुत अधिक प्रताड़ित किया गया उस वजह से। In the world political arena as well as in the world arena of culture and economics, also Islam is being considered very seriously because terrorism is very much associated with that religion. और अगर हम विश्व स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर अगर हम देखें, इस्लाम को बहुत गंभीर रूप से कहा जाता है, उसके विषय में बात की जाती है, क्योंकि अक्सर जो है आतंकवाद को इस्लाम धर्म के साथ उसकी तुलना की जाती है। So we need to know what is happening around us. इसलिए हमें जानने की जरूरत है कि हमारे चारों ओर क्या चल रहा है। Especially we Christians, especially those who are interested in evangelism, should know what other religions teach so that we can counter them in a Christian way. विशेषकर हम मसीही होने के नाते और जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए एक तीव्र इच्छा रखते हैं, उनको अन्य धर्मों के विषय में जानकारी रखना जरूरी है ताकि हम मसीही तरीके से जब बातें उठती हैं ना कर सकें। If all religions are teaching the same thing, teaching truth, then we shouldn't try to convert at all. We shouldn't try to evangelize. No evangelism there. एक ही शिक्षा देते हैं या सच्चाई को ही बताते हैं, तो वहां पर धर्मांतरण या बदलने का परिवर्तन की प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। So it is a necessity of the time to study other religions. और इसलिए इस समय के अनुसार अगर हम देखें तो ये बहुत जरूरी है कि हम अन्य धर्मों के विषय में भी कुछ जानकारियां रखें। And since we are hearing a lot about love jihad from the side of Islam, and many Christian boys and girls are being trapped into believing Islam, we have to be very careful, all the more careful. और जैसे आप सुन रहे होंगे लव जिहाद के विषय में, उसमें कई मसीही युवक और युवतियों को जो है उसमें वो लोग फंस जा रहे हैं, तो इसलिए इस समय हमें इस बारे में सीखना और जानना जरूरी है। It is with great sadness that I heard the news that a staff member of ICPF working in Kerala Tichur was trapped into Islam theology. और बहुत दुखद की घटना है कि मैंने हाल ही में सुना कि ICPF तिचूर के जो एक व्यक्ति स्टाफ हैं, वो इन इस्लाम की कुछ बातों में आकर उधर की ओर चले गए हैं। So Islam theology is capable of winning even our full-time workers.
यानी इस्लाम धर्म ऐसी शक्ति रखता है कि वो हमारे फुल टाइम जो काम कर रहे जो कार्यकर्ता हैं उनको भी अपनी तरफ आकर्षित करे. If Islam is right, we needn't bother, because from one right thing, that fellow went to the other right thing. So we shouldn't bother about that. अगर इस्लाम सही है, इस्लाम में जो सिखाते हैं वो सही है, तो हमें इस विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक सत्य की बातों से लेके दूसरे सत्य की बात की तरफ गए हैं. So we have to first of all decide whether Islam and other religions are true. इसलिए हमें पहले ये निर्धारित करना है, ये निर्णय करना है कि इस्लाम या बाकी अन्य धर्म जो है सही है या नहीं. So let us enter into that topic prayerfully. तो आइए हम उस प्रार्थना के साथ इस मुद्दे की ओर बढ़ेंगे. I think we need the help of the Holy Spirit to say this and to understand these facts truly. और हमें सच में इन बातों को, इन तथ्यों को समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है. When I was sort of preparing for this message, I was really troubled. When I took this responsibility of sharing with you this word, I thought it would be very easy, but in actual experience, it was very tough. और जब मैं आज के इस दिन के संदेश के लिए मैं तैयारी कर रहा था, तो मुझे लगा ये काफी आसान होगा, लेकिन मेरे वास्तविक अनुभव में मैंने देखा कि ये काफी मुश्किल है. So let us prayerfully enter into a brief history of how Islam came into existence. तो इसलिए हम एक बहुत कम समय में जो है बहुत ब्रीफली जो है इसके इस्लाम धर्म के इतिहास के विषय में देखेंगे. So probably you know that Muhammad, the founder of Islam, lived during the 6th and 7th century, that is to be precise 570 and 632 AD. और मैं आशा करता हूँ आप इस बात को जानते हैं कि 5वीं और 6ठी जो है ईसवी शताब्दी में जो है इस मोहम्मद, जो कि जिसको इस्लाम धर्म के फाउंडर के रूप में, संस्थापक के रूप में माना जाता है, उस समय में वो रहा करते थे. Quran is the holy book of Islam, which means recitation or reading. और कुरान जो उनका धर्म ग्रंथ है, वो कुरान जो है इस्लाम का धर्म ग्रंथ है, और उसका अर्थ है कुछ बातों को याद करना या सुनाना. Islam and Muslim two related words means mainly submission or one who surrenders. Submission mainly. इस्लाम और मुस्लिम जो दो शब्द हैं, इसका अर्थ यही है कि समर्पण करना. Muhammad lived in the city of Kaaba, and at the age of 40, by around 610 AD, he began to get some revelations from somebody. और मोहम्मद जो है काबा नामक शहर में रहता था, और तकरीबन जब वो 40 साल का था, यानी 610 एडी के समय पर उसको कहीं से किसी के द्वारा जो है कुछ प्रकाशन मिलने लगी. In Mecca, I said he lived in Mecca, and Kaaba was the main temple there actually. Please correct. वो मक्का जो है नामक जगह में रहता था, और काबा जो है उनके मंदिर का नाम था. So there was the temple was named Kaaba, and it had 360 idols there. और जो मंदिर का नाम काबा था, और उसमें 360 मूर्तियां थी. The major deity placed in the temple Kaaba was Hubal, the moon god, who had another name Allah. और जो उस काबा में जो है एक मुख्य मूर्ति जो रखी थी, उसका नाम हुबाल नाम था, जो कि चंद्र देवता, या उसको बाद में कुछ लोगों ने अल्लाह नाम दिया. And he had 3 daughters, Al-Manat, Al-Uzza, Al-Lat, etc., etc. It's not important. Okay, और उस अल्लाह की जो है 3 बेटियां थी. So that's why Muslims have the symbol of the moon in all their mosques and flags.
और इसीलिए अगर हम मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म में देखें तो चंद्रमा है वो उनका एक मुख्य चिन्ह के रूप में उनके झंडों पे या उनके हर चीजों में हम देख सकते हैं. So there were many Christians living in and around Mecca, and Muhammad used to travel a lot, and he came across Christians, and he came to know about the worship of God rather than so many gods. और उस समय पर मक्का के आसपास ही जो है कई मसीही लोग रहते थे, और क्योंकि मोहम्मद जो है अलग अलग जगह यात्रा करता था, उसकी मुलाकात जो है मसीहियों से हुई, जहां पर उसने एक परमेश्वर की आराधना इस विषय में जो है उसने सुना. Muhammad was a very pious man and wanted to destroy all the idols and establish and bring people back to monotheism, that is worshipping one God. और जो मोहम्मद है वो भी यही चाहता था कि ये मूर्तियों को हटाकर सिर्फ एक ईश्वर की आराधना की तरफ लोगों को लाया जाए. And so what did he do? He destroyed the 359 idols in the temple of Kaaba and established the one God, Allah, there. और इसलिए मोहम्मद ने क्या किया, उसने जो उस मंदिर में रखे हुए 359 जो मूर्तियां थी उनको तोड़कर सिर्फ एक अल्लाह को जो है पर ईश्वर के रूप में स्थापित किया. So that is a brief history of Islam. और ये इस्लाम का एक बहुत छोटा सा एक इतिहास है. So by around the year 610, the pious Muhammad began to have an encounter with a spirit being. और 610 ईस्वी सन के आसपास मोहम्मद जो एक भक्त था उसका किसी व्यक्ति के साथ जो है संबंध या कम्युनिकेशन होने लगा. Muhammad didn't know who was encountering him. मोहम्मद ये नहीं जानता था कि उसकी ये मुलाकात या बातचीत किससे हो रही है. He was frightened, he had suicidal tendencies, and he had even stricken by illness because of that. मोहम्मद जो है बहुत डरा हुआ था, उसके अंदर आत्महत्या करने की ऐसी जो है सोच भी विचार भी आ रहे थे. He feared that, वो बीमार भी था. He feared that an evil spirit is attacking him. और उसको ये डर था कि एक बुरी आत्मा, एक दुष्ट आत्मा जो है उसको सता रही है. So he consulted matters with his wife Khadija, who was older to him by 15 years, and she assured him that it is the angel Gabriel that is appearing to him. और मोहम्मद ने इस बात को अपनी पत्नी खदीजा से बताया, और उसकी पत्नी खदीजा ने उसको इस बात का आश्वासन दिलाया कि ये जिब्राइल जो है स्वर्गदूत है. Nowhere in the Quran it is stated clearly that it was Gabriel that came to him, but it was the assurance of his wife that Muslims believe that spirit was Gabriel. और कुरान में इस प्रकार कहीं नहीं लिखा है कि ये जिब्राइल स्वर्गदूत है, लेकिन खदीजा का ये जो आश्वासन जो उसने मोहम्मद को दिया, वही बात जो है आज जो है मुस्लिम धर्म के लोग जो है इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो जिब्राइल स्वर्गदूत था. So even Muhammad was doubtful about the reality and the truthfulness of his visions in the beginning. और शुरुआत में मोहम्मद भी जो है अब जो दर्शन को वो दे पा रहा था या जो प्रकाशन उसको मिल रहे थे उसके विषय में उसको खुद भी शक था. So once Muhammad said that two people caught hold of me and opened my belly and removed something from my belly. और एक बार मोहम्मद ने कुछ इस प्रकार कहा कि दो लोगों ने मुझे पकड़ा और मेरे पेट को फाड़कर उसमें से कुछ निकाल के फेंका. Later on, it was interpreted to be the cleansing of his heart of all sins. और कुछ समय बाद उसको इस प्रकार से अनुवाद किया गया कि उसको उसके पापों से शुद्ध करने का एक तरीका था. In short, what I want to point out here is that it was a very dubious situation. It was not at all clear whether it was evil spirit or a holy spirit or something. But the origin of Islam is from a very dubious story like this. यानी मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है
कि इस्लाम की शुरुआत जो है एक बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी, ऐसी एक कहानी से शुरुआत हुई। उनको ये नहीं मालूम था कि एक अशुद्ध या दुष्ट आत्मा के द्वारा ये शुरू हुआ या एक अच्छे जो आत्मा के द्वारा ये हुआ। But considering the dubious history of Islam and the present characteristics of Islam, we have no doubt from where it originated. तो अगर हम इस्लाम की इस जो अस्पष्ट इतिहास को देखें और आज के इस्लाम की वास्तविकता को अगर हम देखेंगे तो हमें इसमें कोई शक नहीं है कि ये कहाँ से शुरुआत हुआ। Christian church was built on the blood of the martyrs, Christian believers, whereas Islam is built on the blood of its enemies. और मसीही कलीसिया की स्थापना जो है मसीही जो शहीद थे यानी मसीही विश्वासी थे उनके जो खून के आधार पर जो मसीही कलीसिया का निर्माण हुआ, लेकिन इस्लाम धर्म का निर्माण जो है उसके दुश्मनों के खून पर बना है। One of the most dangerous teachings of Islam is that a Muslim will go to heaven if they kill an unbeliever who is not a Muslim. इस्लाम की एक बहुत खतरनाक जो शिक्षा है वो इस प्रकार है कि अगर वो अपने जो भी अविश्वासी लोग हैं यानी इस्लाम धर्म को जो नहीं मानते हैं, अगर उनको मारेंगे तो वो उनको स्वर्ग प्राप्ति होगा। That is why we see hundreds of young Muslims walking around with bombs tied around their waists to kill unbelievers. और इसलिए हम देखते हैं कि कई जवान लड़के और लड़कियां जो हैं अपने चारों ओर बॉम्ब लगाकर जो हैं ऐसे लोगों को मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसमें समर्पित किए हुए। Some people say that terrorism in Islam is an aberration rather than the rule there. They say that only some extremist Islamists go and kill. और आतंकवाद जो कहते हैं कि बहुत अधिक एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं वही ऐसे कार्यों को या मारने का काम को करते हैं। But actually, if you study the Quran seriously, which luckily people are doing now, we can see that is one of the central teachings of Quran, that if a Muslim kills an infidel, he will go to heaven. और अगर हम देखें ये आजकल जब लोग इस विषय में पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारियां हासिल कर रहे हैं, इसके विषय में जो बातचीत ये है कि जो कुरान का जो मुख्य शिक्षा है वो यही है कि जो भी विश्वास को नहीं इस इस्लाम धर्म के विश्वास नहीं करते हैं उनको मार दिया जाना चाहिए। So don't be offended when I make this bold statement that if you are a serious follower of Muhammad and Quran, you will become a terrorist. तो जब मैं इस बात को इतने स्ट्रांगली कहता हूं तो आप उससे चोट ना खाएं, लेकिन जो भी मोहम्मद या इस्लाम धर्म की बातों को मानते हैं या उनका अनुसरण करते हैं वो किसी न किसी समय एक आतंकवादी के रूप में जो है बदल सकते हैं। In Christianity, if somebody took to weapons, somebody go to be a terrorist, it is against the teachings of Christianity. It is an aberration, not the rule. और अगर हम मसीही विश्वास में अगर हम देखें तो जो भी व्यक्ति हथियार को अपने हथियारों को उठा लेते हैं तो वो मसीही धर्म के जो नियम है या बाइबल के खिलाफ वो जो है कर रहे हैं। We are here to die for Christ, not to kill for Christ. हम यहाँ मसीह के लिए मरने के लिए हैं, मसीह के लिए खातिर लोगों को मरने के लिए नहीं। That is why it is said the church of Christ is established on the blood of martyrs. और इसीलिए ये कहा जाता है कि शहीदों के खून पर है, शहीदों के लहू के ऊपर है कलीसिया की स्थापना हुई है। So now I would like to present before you some characteristics of the founder of Islam, Muhammad. और इस समय पर मैं जो इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद के विषय में कुछ विशेषताओं को कुछ बातों को बताना चाहूंगा। All these informations are collected from Muslim sources, not from outside sources. और ये जो भी मैंने बातें इकट्ठा की हैं, सूचित की हैं,
वो सब जो है मुस्लिम स्रोतों से लिया गया है, कोई बाहर अन्य स्रोतों से नहीं लिया गया है। If you don't know the word hadith, hadith is a commentary on the book of Quran. Hadith. अगर हदीस करके जो किताब है, उसका अर्थ यही है कि कुरान का एक कमेंट्री या उसके विषय में कुछ लिखी हुई टिप्पणियां हैं। Those are books written by followers of Muhammad himself. और जो मोहम्मद के चेले थे उन्होंने ही इस हादिस को लिखा है। From those books we get a clear history of who Muhammad was and how he lived during those times. अगर उन पुस्तकों को हम पढ़ें तो हमें ये समझ में आएगा कि इस्लाम धर्म का इतिहास क्या है, मोहम्मद का इतिहास क्या है, उस पुस्तक को पढ़कर समझ सकते हैं। So we don't have time to go into details, so I will give you a brief history of his lifestyle. तो हम उसके विषय में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उसकी जीवन शैली के विषय में कुछ बातों को हम देखेंगे। At the age of 25, Muhammad married a rich widow named Khadija, aged 40. और जब मोहम्मद 25 साल का था, तब उन्होंने जो है खदीजा नाम की एक बहुत अमीर एक विधवा से शादी की, जो कि उससे 15 साल यानी बड़ी थी, जो कि 40 साल के आसपास थी। He never married anybody else until the death of Khadija. और उन्होंने कभी भी खदीजा की मृत्यु तक किसी और से विवाह नहीं किया। After her death, he began to marry anybody upon whom his heart had an attraction. और खदीजा की मृत्यु के बाद जिस पर भी उसका हृदय लगा, उसने उस व्यक्ति से विवाह किया। He married at the age of 50 a child aged 6-year-old girl. He married at the age of 50. और मोहम्मद जब 50 साल का था, तब उसने एक 6 साल की लड़की से विवाह किया। Another marriage which needs to be mentioned is that he married his own daughter-in-law. और एक दूसरे विवाह, मोहम्मद के दूसरे एक विवाह के विषय में भी बताना जरूरी है कि उसने अपनी बहू से विवाह किया। Her name was Aisha. She was the wife of his foster son. और उसने आयशा, उसकी बहू का नाम जो आयशा था, और मोहम्मद ने एक बच्चे को पाल रहा था अलग से, तो उसकी पत्नी से जो है उसने विवाह किया। He wanted to marry her when he saw her taking bath in her house. और जब मोहम्मद ने देखा कि आयशा अपने घर में जो है नहा रही हैं, और मोहम्मद ने तब देखा और तब उसने निर्णय लिया कि वो उससे विवाह करेगा। He forced his foster son to divorce her and immediately married Aisha. और उसने अपने जो जिस बेटे को उसने गोद लिया था, उसको उस पर जबरदस्ती करके उससे तलाक करवाया, और उसने फिर आयशा से विवाह कर लिया। In Surah 33, Surah means chapter of Quran. In Surah 33, we can see many personal aspects of Muhammad being sanctified by Allah, sanctioned by Allah. 33वें सूरा यानी जो कुरान के अध्यायों को कहते हैं, तो उसमें इस प्रकार लिखा जाता है कि कैसे मोहम्मद को अल्लाह के द्वारा नियुक्त किया गया था, उसको अलग किया गया था। In that chapter, even the kitchen affairs, inside domestic affairs of Muhammad is being sanctioned from above by Allah. और अगर हम उसमें देखें तो जो उसके रसोई घर के जो भी बातें थी, वो भी जो है अल्लाह के द्वारा नियुक्त की जाती थी। So in that chapter, for the normal Muslim, 4 wives are permitted, whereas Muhammad is given permission to take as many wives as possible from any walk of life. और उस भाग में जो है हम इस बात को देखते हैं कि मोहम्मद को जो है कितनी भी विवाह करने की अनुमति थी, लेकिन किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को 4 विवाह करने की अनुमति दी गई थी। So normal believer restricted to marry only 4 women, whereas Muhammad is given freedom to marry any number from any walk of life.
यानी एक साधारण जो विश्वासी है मुस्लिम धर्म में, उसको 4 विवाह करने की अनुमति थी, लेकिन मोहम्मद को किसी भी जगह से, किसी भी क्षेत्र से कितनी भी विवाह करने की अनुमति थी। A true God, a just God cannot give 2 types of laws to his people. एक अगर न्यायी और सच्चा ईश्वर है तो वो अपने लोगों को 2 अलग-अलग तरीके के नियम नहीं देगा। In the Bible, we never come across God giving some special allowances to Moses or to David or to Isaiah. No, the rules of God is applicable to one and all. और अगर हम बाइबल में देखें, बाइबल में परमेश्वर मूसा को या दाऊद को या यशाया को कुछ अलग नियम और बाकियों को अन्य नियम, ऐसा नहीं है। जो भी नियम और कानून दिए गए हैं वो सबके लिए एक बराबर एप्लीकेबल है। Actually, this is a very important aspect of Muslim, is that actually Allah is a personal assistant to Muhammad to sanction his whims and fancies. और अगर हम इस्लाम धर्म के विषय में इस बात को देखें तो अल्लाह को इस प्रकार माना जाता है कि अल्लाह मोहम्मद का एक व्यक्तिगत मंत्री जैसे है, जो कि मोहम्मद जो चाहता है उसको करने की अनुमति या नियुक्ति देता है। Even one of Muhammad's wife once commented that your God is very, very particular that he gives you your own desires of your heart. एक बार मोहम्मद की एक पत्नी ने इस प्रकार कहा कि अल्लाह जो है तुम्हारा मन चाहे चीजों को जो है तुम्हें दे देता है। So this is very important. Allah is a personal assistant to Muhammad rather than the Almighty God. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अल्लाह जो है मोहम्मद का एक पर्सनल असिस्टेंट के रूप में है, एक ईश्वर के रूप में नहीं। In Kerala, there is a Muslim convert to atheism, and he says that Islam is a Muhammad's fans association. केरल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इस्लाम धर्म से निरीश्वरवादी जो है, जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करते, कैसे उसकी तरफ जो है कन्वर्ट हुए। उन्होंने इस प्रकार कहा कि जो अल्लाह है मोहम्मद का एक फैंस एसोसिएशन है, उसके जो चेले हैं उनके एसोसिएशन में से है। Muhammad is more important for a Muslim than Allah in many cases. और अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि अल्लाह से बढ़कर मोहम्मद को प्राथमिकता या उसको महत्व दिया जाता है। Then coming to one of the teachings of Quran, which is known as taqiyya. Quran teaches that you can lie if necessary. और ताकिया करके कुरान की एक भाग है जिसमें ये शिक्षा दिया जाता है कि अगर जरूरत हो तो झूठ बोलना सही है। बोला जा सकता है। You can lie to your wife. You can lie if your life is in danger, etc., etc. For convenience sake, you can lie. तो वहां पर सहूलियत के अनुसार अगर आप अपनी पत्नी से झूठ बोल सकते हैं, नहीं तो अगर किसी मुश्किल में आप हैं तो आप झूठ बोल सकते हैं। Even the fundamental principles of your faith can be denied if you are in danger. You can lie there. और अगर आप खतरे में हैं तो उस समय पर जो आपके धर्म के जो मूल बातें हैं उनको भी हटाकर जो है झूठ बोला जा सकता है। इस प्रकार ये बातें सिखाती हैं। So that's a very dangerous permission, because the sinful man, if he gets an opportunity to do a sin, he will do any sort of sin based on that. तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि एक पापी मनुष्य, अगर उसको ये अनुमति दी जाती है कि जो भी करे तो वो जो है उस पाप को और ज्यादा करेगा। See, Muhammad's character and this permission of taqiyya to say lies whenever it is necessary shows that Muhammad was not a straightforward man. He was a sort of cheat. It's a fraud. तो अगर हम मोहम्मद के चरित्र को और इस जो शिक्षा जो हमने जिसके विषय में सुना, अगर इसको हम समझे तो हम इस बात निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि जो मोहम्मद जो है एक सच्चा एक व्यक्ति नहीं, लेकिन एक फ्रॉड है या एक धोखेबाज है।
See, let me elaborate a bit on this topic that a Muslim is not permitted to have dogs in their house. तो मैं इस विषय में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मुस्लिम लोगों को अपने घर में कुत्ते पालने की अनुमति नहीं है. Dogs not permitted. Very, very haram है. और उसको उनको बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाती है. Then there is another principle, not in Quran but in Hadith, which says that if a man is gone for a long journey, he shouldn't return in the night. और हदीस में, कुरान में नहीं है लेकिन हदीस में इस प्रकार एक शिक्षा भी है कि अगर एक व्यक्ति लंबी यात्रा पर दूर गया है तो वो रात के समय में लौट कर नहीं आ सकता. Remember the former statement that you can lie to your wife. तो यानी आप अगर पिछला जो हमने कथन कहा था कि आप अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, उसको याद रखें. No dog, no returning in the night, and you can lie to your wife. कुत्ते पालना की अनुमति नहीं है. तुम देर रात में वापस अपने घर नहीं लौट सकते और अपनी पत्नी से तुम झूठ बोल सकते. Scholars say that these rules were incorporated into Muslim faith because Muhammad was in the habit of roaming around in other people's house during night. और जो वैज्ञानिक लोग हैं इस विषय में, जो शिक्षा विद्वान लोग हैं, वो इस प्रकार कहते हैं कि ये प्रथा या ये शिक्षा इसलिए आई क्योंकि मोहम्मद की एक आदत थी कि वो रात के समय में अन्य घरों में जो है इधर उधर जाते थे या आना जाना करते थे. Once or twice Muhammad was caught lying in the lap of some other man's wife. और इस प्रकार भी कहा जाता है कि मोहम्मद को कई बार रंगे हाथों पकड़ा गया जब वो किसी और स्त्री के साथ सो रहे थे. What I am trying to prove here is that the book written by this fellow who had no qualms in doing such things cannot be a divine revelation. तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने नैतिक जीवन में भी जो है एक आधार नहीं था, वो एक ऐसे धर्म का, एक ऐसी शिक्षा को कैसे दे सकता है. One more thing I would like to say about Muhammad is that he spread his religion through war. You know that. और मोहम्मद के विषय में एक और बात है कि उसने इस धर्म का जो प्रचार है युद्धों के द्वारा किया. Islam is a religion which spread itself through the power of the sword. और इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो कि तलवार के बलबूते पर इसका प्रचार किया गया है या बढ़ा. That is an accepted fact of history. That is an accepted fact of history. और इतिहास में एक माना जाने वाला एक तथ्य है. Muhammad had the habit of staying in a battlefield after the war is over for 3 days to see the blood-clotted bodies suffering there. और ये कहा जाता है कि मोहम्मद की एक आदत थी कि युद्ध खत्म होने के भी 3 दिन बाद तक वो युद्ध भूमि में ही रहा करते थे ताकि जो खून से लथपथ जो शरीर है उनको देखें कि कितनी पीड़ा उनको पहुंची है. He was happy in seeing heads rolling in the mud. और उसको ये देखना पसंद था कि किस प्रकार जो खून से लथपथ जो सिर हैं, कटे हुए सिर, वो मिट्टी में मिल रहे हैं. This man claims that he is the last prophet of God. और यही व्यक्ति इस बात की घोषणा करता है या इस बात को स्वीकार करता है कि वो ईश्वर का जो है आखिरी भविष्यवक्ता था. His followers are imitating him these days. और उसके जो शिष्य हैं या चेले हैं वो इन दिनों में उसी बात को अपने जीवन में उसकी नकल कर रहे हैं. We have to say painfully that terrorism is built in Islam, inbuilt in Islam. और हमें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आतंकवाद जो है इस्लाम धर्म में ही स्थित है या उसमें से बड़ा है. These days we hear of this love jihad. और इन दिनों में हम लव जिहाद के विषय में जो है सुन रहे हैं. Many Christian
boys and girls were trapped into Islam for their terrorist activities. और हम देखते हैं कि कई जवान लड़के और लड़कियां जो हैं इसमें फंस गए इस्लाम जिहाद की वजह से. Those people use betraying, lying techniques, wrong techniques, like presenting them with a mobile phone, a costly mobile phone, or promising them much money. They attract people to their group. और कुछ चीजों को जैसे कि कुछ मोबाइल फोन देकर या कुछ पैसे देकर उनको इस धर्म की ओर या इस कार्य की ओर उनको आकर्षित किया जाता है. Those people are following their master's habit of saying lies and doing all sorts of wrong things. और ये अपने जो उनका स्वामी था या मालिक था पहले जो उनका हुआ था उसी के कार्यों के आधार पर ये लोग भी कर रहे हैं जहाँ पर झूठ बोल रहे हैं और गलत कामों को गलत तरीकों को अपना रहे हैं. If you study the books written by Muslims like the Hadith, etc., you can see much more evil activities being done by both Muhammad and his followers. और अगर आप मुस्लिम जो धर्म की जो पुस्तकें हैं हादिस और अन्य पुस्तकें जो हैं अगर आप उसको पढ़ के देखेंगे तो मोहम्मद की और उसके जितने भी अनुसरण करने वाले लोग हैं उनके विषय में कई गलत बातों को जो वो करते हैं उस विषय में आप पढ़ेंगे. Outwardly, there are many biblical names and events recorded in Quran, and people may think that Bible and Quran are almost similar. और अगर हम बाहरी रूप से देखें तो कई पुराने नियम के नाम उसमें जो है पाए जाते हैं लेकिन और इसी कारण जो है अधिकतर लोग समझते हैं कि बाइबल और कुरान ऑलमोस्ट एक ही समान है. There is nothing farther than this. The truth is just the opposite of it. लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है. It's a very dangerous doctrine that is being taught by Muhammad and Quran. और मोहम्मद और कुरान के द्वारा बहुत गलत या बहुत खतरनाक शिक्षाएं दी जा रही हैं. That's why the whole world is these days throwing Muslims out of their countries. और इसीलिए अक्सर जो देश हैं वो अपने ही देश में से मुस्लिमों को बाहर कर रहे हैं. In England, if you observe the YouTube and all, in England, many a times Muslims are marching in public, demanding that they should be given the freedom to practice their religion in their area. Shariat law should be established in some particular areas of England these days. और इंग्लैंड में जो है इस बात को हम देख सकते हैं कि कई मुस्लिम जो हैं गुट बनाकर इस बात को जो है इस बात की मांग करते हैं कि उनके धर्म को आज़ादी के साथ उनको अनुसरण करने के लिए या पालन करने के लिए उनको आज़ादी दी जाए और जो शरीयत नियम है उनके एरियाज में उनके क्षेत्रों में उसको मानने की अनुमति दी जाए. Security of many European and nations and American states are in danger because of the growth of Muslim population there. और अगर हम इस जो अमेरिका के कई राज्यों में देखें और या कई यूरोपीय देशों में देखें तो उन लोगों का जो सुरक्षा जो है बहुत खतरे में है क्योंकि इस्लाम या मुस्लिम की जो आबादी है बहुत अधिक बढ़ती जा रही है. Let me present you one more aspect of Quran, which is abrogation. और मैं कुरान की एक और बात को जो है बताना चाहता हूँ. Abrogation is cancelling of previous revelation because of a later revelation. एब्रोगेशन या किसी बात को ना करके कहना वो उसका अर्थ है ये है कि जो पहले एक प्रकाशन मिला है उसको खारिज किया जाता है क्योंकि एक नया अभी इस समय पर एक नया प्रकाशन उनको मिला है. A book is revised in the next edition because there were some mistakes in the first edition. और अगर किसी पुस्तक की बात करें तो पुस्तक का एक जो लेटेस्ट वर्जन आता है वो इसलिए आता है क्योंकि पुराने वर्जन में कुछ गलतियां थी. We have to revise our previous statements because we are limited human beings. हमें अपने पुराने कथनों को बदलने की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम सीमित जो है प्राणी हैं. We make mistakes, we correct it later on. हम गलती करते हैं और कुछ समय बाद हम उसको सुधारते हैं. Quran is claimed to be the eternal word of God
and a copy of Quran is in heaven. और ये कहा जाता है कि कुरान जो है ईश्वर का सनातन वचन है, और ये भी कहा जाता है कि उसकी एक जो प्रति है, कॉपी है, वो स्वर्ग में भी पाई जाती है। The book written by the omniscient God claims that it needs revision and correction. और ये कहा जाता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा लिखा गया एक वचन, उसमें सुधार लाने की जरूरत है। So think of an omniscient God publishing a book and having to revise it once in a while. What type of God is that? तो आप ये कल्पना करके देखिए कि एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने एक पुस्तक लिखी है और उसको बाद में कुछ गलती होने के कारण सुधार लेके आना पड़ता है, तो ये कैसा परमेश्वर है? Can we believe that God? क्या हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं? Won't he change the principles again and again? क्या वो उन सिद्धांतों को बार-बार बदलेगा नहीं? So, philosophically speaking, theologically speaking, logically speaking, Quran and the related stories are in no way believable, trustworthy. यानी हम इस प्रकार कह सकते हैं, किसी भी तरीके से कुरान की जो कहानियां हैं उस पर भरोसा या विश्वास नहीं किया जा सकता है। Quran is written by a man for his own personal purposes. कुरान एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई और उसके खुद के इच्छाओं के या उद्देश्यों के साथ लिखी गई है। The God of Quran is a personal assistant who takes care of the personal needs of its author Muhammad. और कुरान जो कुरान का परमेश्वर है या जो परमेश्वर है, वो एक उस किताब के लिखने वाले लेखक का एक पर्सनल असिस्टेंट है जो उसकी हर एक इच्छाओं को पूरी करके देता है। You read chapter 33, Surah 33 of Quran, and you will come to know that yourself. और अगर आप सूरा 33वां सूरा पढ़ के देखेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे। So, coming to the conclusion of this message, how can we resist this tempting invitation of Islam into infiltration into Christianity? हम इसके कंक्लूजन की तरफ हम आएंगे कि कैसे हम इस शिक्षा को जो कलीसिया में प्रवेश कर रही है, इस कार्य को हम कैसे रोक सकते हैं। Many youngsters are being lured into Islam through money, through pleasure, through so many other things. और कई मसीही लड़के और लड़कियों को जो है कई आकर्षण की वस्तुओं के द्वारा जो है इस धर्म की ओर लेके आया जा रहा है। The first thing that we have to do is to study our word of God thoroughly. और सबसे पहला कार्य जो हमें करना है वो ये है कि परमेश्वर के वचन की बहुत अच्छे तरीके से हमें इसको पढ़ने की जरूरत है। Muslims attack Bible vehemently, always, everywhere. और मुस्लिम जो है बाइबल की हर जगह पर हर तरीके से जो है इसके ऊपर सवाल उठाते हैं। They say that Bible is corrupted, Bible is outdated, that is why Quran has to be implemented. और उनका ये एक मानना है कि बाइबल जो है बहुत पुरानी है और ये बहुत भ्रष्ट है, इसीलिए उसकी जगह पर कुरान को लाया गया है। We need to study the word of God thoroughly to prevent the infiltration of Islam into Christianity. हमें इसलिए वचन की ज्ञान और जानकारी बहुत अधिक होनी चाहिए ताकि हम जो इस्लाम का जो प्रवेश जो कलीसिया में हो रहा है उसको रोका जा सके। In Kerala, in our place, one Mr. M.M. Akbar, a Muslim preacher, began to conduct meetings all over Kerala, trying to prove that Bible is full of mistakes and wrong. और हमारे ही क्षेत्र में केरला में एक M.M. अकबर करके एक व्यक्ति है जो मुस्लिम प्रचारक है, उसने कई मीटिंग्स को जो है आयोजित किया जहां पर वो इस बात को बार बार बता रहे हैं कि बाइबल गलत है और उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। One good thing happened because of that. Many
Christian believers began to study Quran and Bible seriously and started refuting, replying Imam Akbar and Muslim debaters. और इसके कारण जो है एक बहुत अच्छी बात जो हुई वो ये है कि कई मसीही लोग कुरान और बाइबल को साथ साथ जो है पढ़ने लगे और उनकी सच्चाइयों को मालूम करने के बाद ऐसे जो प्रचारक हैं या जो इमाम अकबर जैसे जो प्रचारक हैं उनका सामना करने लगे. Praise God, these days Imam Akbar and such people are nowhere conducting any more meetings. We could counter them, we could silence them fully. और प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसा हुआ कि अभी इमाम अकबर और ऐसे जो अन्य प्रचारक हैं तो उनकी आवाज कहीं सुनने में भी नहीं आती है. If we study the word of God rightly, regularly, nobody can influence us. अगर हम बाइबल को पूरी शिद्दत के साथ जो है अगर हम पढ़ें और उसको सीखने की इच्छा से हम पढ़ें तो हमें कोई भी भटका नहीं सकता है. And also, we should know how we can be saved. We should know soteriology, the study of salvation clearly. और हमें जो है सोटेरियोलॉजी या हमारे जो उद्धार के विषय में जो शिक्षा है उसको बहुत ध्यान से सीखने की जरूरत है. In Quran, Allah forgives the sins of His followers unilaterally without considering anything. और कुरान में जो है उनका जो अल्लाह है उनके पापों को बिना कुछ सोचे समझे उनको क्षमा कर देता है. If you are a follower of Allah, your sins are forgiven without any other consideration. अगर आप अल्लाह को मानते हैं उसका अनुसरण करते हैं तो बिना किसी रोक टोक के बिना कुछ सोचे उसको क्षमा की जाती है. A righteous God cannot do that. एक धर्मी परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता है. A righteous God has to punish the sinner in the first place. पहली बात कि एक धर्मी परमेश्वर को एक पापी को दंड देना जो है न्याय है. A judge cannot let a culprit go scot free simply because that culprit was a relative of him. एक न्यायाधीश या एक जज जो है अब किसी भी व्यक्ति को यूं ही बरी नहीं कर सकता है सिर्फ इसलिए कि वो उसका रिश्तेदार है. Either the culprit or somebody who can represent him should pay the penalty for their crime. या फिर उस अपराधी को या उसके जो भी कोई व्यक्ति है उनको उस अपराध की जो है सजा या उसका दंड या उसका जो पेनाल्टी है उसको भरना जरूरी है. In Quran, we don't see a savior of human race who pays the price for the sins of the world. हम कुरान में एक ऐसे उद्धारकर्ता के विषय में नहीं देखते हैं जो मनुष्य जाति के पापों से उसको बचाने के लिए आया हो या उसका उद्धार करने आया हो. But in Bible, we see a righteous God who punishes His own Son as our representative so that our sins can be forgiven. पर हम बाइबल में एक ऐसे परमेश्वर को देखते हैं जो अपने ही पुत्र को हमारे प्रतिनिधि के रूप में उसको हमारे पाप का दंड देकर उसको मारता है और ताकि हमें छुड़ाए. That is why by of blood there is no remission of sins in Hebrews 9:22. और इसलिए इब्रानियों 9 के 22 में इस प्रकार कहा जाता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है. The wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है. Either the sinner or a substitute for him should die before sins can be forgiven. और पाप क्षमा करने से पहले उस अपराधी को या अपराधी के बदले किसी को मरना जरूरी है. That perfect salvation, atonement is seen in the Bible in the death of Jesus Christ. और हम यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा उस प्रायश्चित को या उस उद्धार के कार्य को जो है हम देख सकते हैं. The cross of Christ is the crux of Christianity, the center of Christianity and the glory of Christianity. यीशु मसीह का जो क्रूस है वही मसीहियत का मुख्य है या उसका जो मूल है
और उसी की महिमा है। That is a just way of saving a sinner. और यही एक पापी को बचाने का या पापी को रक्षा करने का एक सही तरीका है। Bible is glorious because of this sacrificial death of the Son of God in our place. और यही बाइबल का जो महिमामय बात है कि परमेश्वर का पुत्र हमारी जगह पर मरता है। If we are sure of this unique salvation process initiated by God, then we will never run after any other philosophies. अगर परमेश्वर के द्वारा किए गए इस उद्धार के कार्य पर हम पूर्ण विश्वास करते हैं तो हम कहीं भी भटकेंगे नहीं। Those people who quit Christianity for Islam are the ones who don't know what a unique salvation we have in Christ. जो भी मसीही विश्वास से इस्लाम विश्वास की तरफ जो मुड़ गए हैं वो इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर के पुत्र के द्वारा जो हमारे लिए प्रायश्चित किया गया है वो कितनी अनोखी बात है। Do you know this terrible fact that nowhere in the Quran the word love is used even once? क्या आप इस दुखद बात को जानते हैं कि कुरान में प्रेम शब्द जो है एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया गया है? And how many times that word is used in Bible? और बाइबल में वो कितनी बार इस्तेमाल किया गया है? Our God is a God of love and justice. हमारा परमेश्वर प्रेम और न्याय का परमेश्वर है। Cross of Christ, death of Christ is the combination of the love of God and the justice of God. यीशु मसीह का क्रूस है, यीशु परमेश्वर का प्रेम जो है न्याय और परमेश्वर के प्रेम का एक मिलन है। Without shedding of blood, there is no remission of sins. बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। So, to block the attacks of Islam on Christianity, we have to be confident in our salvation. इस्लाम की जो मसीहत पर जो वार करते हैं उन बातों को रोकने के लिए हमें अपने उद्धार के विषय में निश्चिंत होने की जरूरत है। The tragic thing about our generation, Christian generation, is that they are not sure about their salvation. और आज के युवा पीढ़ी की सबसे बड़ा खतरा ये है कि वो अपने उद्धार के विषय में बिल्कुल पक्के नहीं हैं। Also study theology, the nature of God, Trinity of God, etc., etc. और परमेश्वर के विषय में या त्रिएक परमेश्वर के विषय में और अन्य ऐसे विषयों के बारे में सीखने की जरूरत है। Because Islam attacks Trinity always. क्योंकि जो इस्लाम धर्म है वो त्रिएक परमेश्वर के उस सिद्धांत पर अधिकतर जो है वार करते हैं। We have many encounters with the Muslim debaters here in our place, and after one or two encounters, they don't come back. और हमारे इस जगह पर जहाँ पर मैं रहता हूँ वहां पर कई ऐसे इस्लाम धर्म के वाद विवाद करने के लिए आते हैं और एक दो बार के बाद वो लोग वापस नहीं आते। Once they know that we are well versed in Bible, they don't come to attack us. और जब उनको मालूम पड़ जाता है कि इनको बाइबल की अच्छी जानकारी है तो फिर वो वापस हमसे वाद विवाद करने नहीं आते। Also, we need to study about Islam and other religions. और उसी के साथ साथ हमें इस्लाम और अन्य धर्मों के विषय में भी जानकारी रखना जरूरी है। By studying other religions, we come to know of their deficiencies. जब हम अन्य धर्मों के विषय में पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि उसमें क्या कमियां हैं। By studying Bible, we come to know of the all sufficiency of our God and the salvation as is present in the Bible. और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो उसके उद्धार परमेश्वर के उद्धार के कार्य को या परमेश्वर की संपूर्णता को उसके सर्वशक्तिमान होने के उस पद को जो है हम समझ पाते हैं। So I pray that all of you start studying your Bible seriously and considering your salvation seriously. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बाइबल को गंभीर रूप से पढ़ेंगे और अपने उद्धार के विषय में भी गंभीर रूप से विचार करेंगे। We are living in dangerous times. हम बहुत खतरनाक समयों में हम जी रहे हैं। Wrong theologies are attacking our faith. गलत शिक्षाएं हमारे विश्वास के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। Jesus himself warned us that there won't be faith enough when he comes back.
यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहते हैं कि जब वो वापस आएगा तो जितना विश्वास वो देखना चाहता है उतना विश्वास नहीं देखेगा लोगों में। If we want to escape the onslaught of such wrong religions, we have to study the Word of God thoroughly. और अगर हमें इन धर्मों की ऐसी प्रचलित शिक्षाओं से अगर हमें बचना है तो हमें परमेश्वर के वचन की गंभीर रूप से जानकारी और उसको पढ़ना जरूरी है। May God bless you to do that. और परमेश्वर आपको ऐसा करने के लिए मदद करे और आशीष दे। May this small study help you to delve into the serious study of Bible and other religions also. और ये जो छोटा सा जो हमारा बातचीत या सेशन था वो आप लोगों को मदद करे कि आप परमेश्वर के वचन की गहराइयों में जा सकें। Thank you very much for giving me this opportunity to share with you for this 1 hour. मुझे इस पिछले एक हफ्ता जो है इस पिछले एक घंटा मुझे इस विषय में बात करने के लिए जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। Let us conquer the world for Christ. आइए हम परमेश्वर के लिए इस संसार को जीतें। Thank you very much.